Hello students, today we start accountancy section B, financial statement analysis. First of all, we understand what's the meaning of financial statement. Financial statement refers to such statements which contain financial information about an enterprise. These statements are a collection of data presented on the basis of logical and consistent accounting principles. They report the profitability and the financial position of the business at the end of accounting period. The term financial statements includes at least two statements which the accountant prepares at the end of an accounting period. The two statements are the balance sheet or a statement of financial position and the income statement or profit and loss statement. फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमने 11th क्लास में पढ़ा था, ट्रेडिंग पी&एल बैलेंस शीट। लेकिन जब कंपनी की जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस होते हैं उसमें दो स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करते हैं। फर्स्ट बैलेंस शीट और अ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, सेकंड द इनकम स्टेटमेंट और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। अब इसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट के कितने टाइप्स होते हैं? According to Company Act 2013 Section 240, financial statement in relation to a company include the following. First, a balance sheet as at the end of the financial year. Second, a statement of profit and loss for the financial year. Third, cash flow statement for the financial year. Fourth, a statement of changes in equity if applicable. And fifth, explanatory नोट्स। ये 5 टाइप्स के फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो कि एक कंपनी को प्रिपेयर करने होते हैं। अब क्या ऑब्जेक्टिव है इसका, देखते हैं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट: टू प्रेजेंट अ ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। इसमें फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन का सही तरीके से पता चलता है कि कंपनी को कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, इस तरीके से। टू प्रेजेंट अ ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन कंपनी की जानने में हमें हेल्प होती है कि कंपनी की कितनी एसेट्स है, कितनी लायबिलिटीज़ है, कंपनी की कितनी एसेट्स का टर्नओवर है, कितनी इक्विटी का टर्नओवर है। ये हमें फाइनेंशियल पोजीशन का पता चलता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है? तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर रिलेटेड टू पास्ट पीरियड एंड हेंस आर हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स। पास्ट पीरियड का बनाया जाता है, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बनाए जाते हैं वो 1 ईयर के बनाए जाते हैं। पास्ट में हमारा जैसे कि 1 ईयर का 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का जो पोजीशन रही, तो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं एंड ऑफ द ईयर 31 मार्च को। तो ये पास्ट पीरियड के रिलेटेड होते हैं। सेकेंड है दे आर एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी। इसको किस में एक्सप्रेस करते हैं? हम मनी में एक्सप्रेस करते हैं। तो ये हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस की ऑब्जेक्टिव्स, कैरेक्टरिस्टिक्स और टाइप्स थे जो हमने अभी पढ़े। अब आते हैं हम एसेंशियल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या एसेंशियल्स है इसकी? पहला पॉइंट है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी मीन्स इंफॉर्मेशन कंटेंट इन द financial statement should be true and fair so that the users of this statement can have a correct idea about the profitability and financial position of the concern. Second है comparability. The financial statement should contain the figures of previous year along with the figures of current year so that the current performance can be compared with past performance. Third है easy understandable. The financial statement should be presented in such a simple and logical manner that they are understood easily. Fourth है relevant to purpose. इसका मतलब ये है the financial statement should not contain the unnecessary और irrelevant information. इसमें unnecessary और irrelevant information को contain नहीं किया जाता। Fifth है consistency. Consistency means the financial statement should be prepared on the basis of consistent accounting policies and practices. The accounting policies such as the method of depreciation or the method of valuation of closing stock etc. should not be changed from year to year. Otherwise, the comparison of current performance with the past performance will not be possible. 6. Analytical presentation.
means the financial statement should present the data in such a classified form that the data needed for analysis is available easily. For example, the current asset should be distinguished from fixed assets. Second हमारा promptness. The financial statement should be prepared in the shortest possible time. In other words, should be available very quickly after the close of the year. तो ये हमारा एसेंशियल्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट थे। 8 पॉइंट है हमारा कंप्लायंस विद लीगल रिक्वायरमेंट्स। इसका मतलब है द फॉर्म ऑफ कंटेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट मस्ट बी इन कंफर्मिटी विद ऑल द लीगल रिक्वायरमेंट्स। इन इंडिया दे शुड कंप्लाई विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ कंपनी एक्ट 2013। तो कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग ये हमारे लीगल रिक्वायरमेंट्स होने चाहिए। तो ये हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट की एसेंशियल्स थी। अब आते हैं हम इसकी पार्टीज़ इंटरेस्टेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट कि कौन कौन सी पार्टीज़ इंटरेस्टेड है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए। तो इसकी 2 टाइप्स हैं, इंटरनल यूज़र्स और एक्सटर्नल यूज़र्स। इंटरनल यूज़र्स में हम इंक्लूड करते हैं मैनेजमेंट और शेयर होल्डर्स को, और एक्सटर्नल यूज़र्स में हमारे आते हैं डिवेंचर होल्डर्स, बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, क्रेडिटर्स, एम्प्लॉय एंड लेबर यूनियन एक्सेट्रा। तो ये हमारे इंटरनल यूज़र और एक्सटर्नल यूज़र्स थे। अब इसकी लिमिटेशन क्या होती हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, ये देखेंगे। पहला है इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन। इसका मतलब ये है कि ये दीज स्टेटमेंट्स प्रोवाइड ओनली द इंटरिम रिपोर्ट ऑफ द बिजनेस एंड डू नॉट गिव द फाइनल पिक्चर। सेकेंड लिमिटेशन इज बेस्ड ऑन अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स एंड conventions, means financial statements are prepared on the basis of a number of accounting concepts and convention. Hence the profitability and the financial position disclosed by these statements may not be realistic. For example, fixed assets are shown in the balance sheet according to the going concern concept. This means that the fixed assets are shown at their cost and not at their realizable value. तो ये इसकी लिमिटेशन है एक। थर्ड है ओमिशन ऑफ क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशंस, मीन्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंटेन ओनली दोज इंफॉर्मेशन विच कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो इंफॉर्मेशन है वो सिर्फ मनी में एक्सप्रेस कर सकते हैं। क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस यूनिट्स आर ओमिटेड फ्रॉम द बुक्स एट ऑल एज दीज कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन मॉनिटरी टर्म्स। क्वालिटेटिव की टर्म्स मॉनिटरी टर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। नेक्स्ट है बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ हिस्टोरिकल कॉस्ट एंड एज सच द फिगर्स गिवन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट डू नॉट शो द इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन price level. Hence they provide only the historical information which is not useful for decision making. लास्ट है हमारा affected by window dressing. इसका मतलब क्या होता है? The practice of manipulating accounts so that the financial statements may disclose a more favorable position than the actual position. For example, the purchase made at the end of the year may not be recorded or closing stock may be overvalued. Hence, correct decision cannot be taken on the basis of such financial statement. तो ये हमारी limitations थी। अब हम हमारी नेक्स्ट क्लास में एनालिसिस, फाइनेंशियल एनालिसिस का मतलब समझेंगे। थैंक यू, गुड बाय।